Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday we started a new series, the right way to prepare for competitive examination. In the first video, I told you that the mock test is a diagnostic test. You should attempt a mock test. Link I provided in description and comment column. And I am happy that hundreds of you subscribed this mock test yesterday and attempted the mock test. And then I advise you to note down the type of questions you could not handle in quant, in reasoning, in English. Now in second video we tackled how you will cover the topics where you are weak in quant. So in this video we are tackling how to handle the topics where you are weak in English and how to improve our performance in English in real examination. Now if we look at the quality of mock test, daily lot of appreciations are coming. I will read out only two compliments that received yesterday. One is Prabhat Yadav. He is already got job due to help of this channel. Even in SBI Clerical 2018, many new pattern questions in reasoning section were exactly same as given in Smart Kida mocks. So this is a great compliment for a good quality mock test. Another person, Gunjan Day, says, "Sir, the unique part of test zone mock test is analysis part. Its wonderful analysis mechanism helped me a lot to improve my preparation, and the quality of content is no doubt very good. This mock test helps a lot." Now these are the observations of the people, those are already using it. So the real thing is, if somebody is using a mock test and he is finding it of a good qualities, and many of the users have got the job, no further certificate is required for a quality of a mock test. There is no doubt this mock test is of a good quality and it helped thousands of people to get the job. Now we will come to the topic. You have identified that these type of questions I am unable to solve in English section. It may be error detection. It may be anything. Now, why you are not able to solve it? Just ponder over it. The real reason of low performance of a candidate in English section is his or her weakness in grammar in that language. So grammar is the most important thing that helps us in achieving perfection in a language. So the best thing is we should refer related topics from the grammar book. Say I am not able to find the error in a sentence. That means I must read chapter on sentence. Then in sentence formation, what are important part? Like if you go to the grammar book in Wren and Martin, you will find the first chapter itself is the sentence. Then what are part of speech? What is phrase? What is clause? What is noun? What is pronoun? Adjectives, articles, and all those topics are given there one after another. The moment we read that topic, it tells us where we are lacking. So some people says, "Sir, how much we have to read in a grammar book?" I always says you have to read the entire book. This book may be containing more than 450 pages.
it looks to be a very difficult task. But if I can divide this into bit and pieces, that means if I spend 1 hour and in 1 hour say I am able to cover 20 pages, another person may be able to cover 30 pages. So in 15 to 20 days we can finish this book. I have seen people, those have finished the book even in 1 week, spending 1 or 2 hours a day. So this depends upon you, how much time you distribute to a particular activity. If you are scoring low in English, or not able to spot the errors, or not able to do the comprehension questions, or you are not able to do any other type of questions, but the meaning is very clear that you are weak in grammar. So reading grammar book improves your overall knowledge of language. So the first and most effective technique is go through grammar book. Second important thing is my method, copy A and copy B. For that you can watch my series on how to improve English. That method you can use. For vocabulary, I have suggested from a newspaper, you should pick 5 words daily, write down on a diary, understand the meaning of that, then pick another 5 words, and so on. And gradually you will have number of words that is added to your vocabulary. Most of the examinations, those words are coming, those are introduced recently by media. So if we pick the word from a newspaper that is new to us and learn the meaning of that, that's add to our knowledge and that can be helpful in cracking the English paper. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब कल हमने एक नई सीरीज शुरू की थी कि क्या सही तरीका है एग्जाम की तैयारी करने का. उसमें मैंने आपको एक सजेस्ट किया था कि आप एक ये मॉक टेस्ट लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में आपको दिया था. और उसके साथ हमने ये बात की थी कि उसको करने के बाद क्या क्या क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसको आप एक डायरी में नोट करेंगे. इंग्लिश में क्या नहीं कर पाए, मैथ्स क्वांट में क्या नहीं कर पाए, रीजनिंग में क्या नहीं कर पाए, उसको आप नोट करेंगे. फिर मैंने आपको बताया था कि हम आने वाली वीडियोस में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे. कल सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव में इंप्रूवमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको देख सकते हो. अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि जो मॉक टेस्ट मैंने सजेस्ट किया है उसको लेके काफी कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं. हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट इस चैनल पे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है. और कई बार मैं वीडियोस में वो कमेंट पढ़ के भी सुनाता हूँ. आप भी चैनल पे अगर देखेंगे तो आपको कमेंट कॉलम में बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे. अब कल 2 नए कमेंट मैंने चुने हैं काफ़ी कमेंट्स में से, सिर्फ आपके बेहतरी के लिए पढ़ के सुना रहा हूँ. एक है प्रभात यादव के, जो ऑलरेडी इस समय एम्प्लॉय हो चुके हैं स्टेट बैंक के अंदर. वो कहते हैं कि इवन स्टेट बैंक क्लरिकल 2018 के अंदर भी काफ़ी नई पैटर्न के क्वेश्चन जो रीजनिंग सेक्शन के थे वो एग्जैक्टली सेम थे जो स्मार्ट कीड़ा मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं. अब उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने मॉक टेस्ट यूज़ किया और सिमिलर पैटर्न वहाँ आ गया. जबकि 2018 में काफ़ी लोग परेशान थे कि कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आ गए और वो नहीं कर पाए थे. बट क्योंकि इन्होंने अच्छा मॉक टेस्ट यूज़ किया हुआ था, ही कुड अटेम्प्ट इट. अब आप ये देखिए, गुंजन डे कहते हैं कि सर टेस्ट जोन मॉक टेस्ट का यूनिक पार्ट है इसका एनालिसिस. बहुत ही वंडरफुल एनालिसिस मैकेनिज्म है इसमें, जिसने मुझे मदद की अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने में. और क्वालिटी ऑफ कंटेंट तो निश्चित तौर से ही बहुत अच्छा है. ये मॉक टेस्ट
बहुत अधिक मदद करता है। ऐसे सैकड़ों कमेंट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा कहना माना। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि सही है कि गलत है। जिंदगी में जो विश्वास होता है उसी से हम आगे बढ़ते हैं, और जो अनुभव होता है उसका कोई तोड़ नहीं होता है। जैसे जैसे आपको भी जिंदगी में अनुभव होता जाएगा तो आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ भाई वास्तव में मैं हूं। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, बहुत क्वालिफाइड है, पर उसको तजुर्बा 2 साल का है, और एक डॉक्टर है जिसको अनुभव है 30 साल का। क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट किसके पास जाता है? उस डॉक्टर के पास जिसको अनुभव है। तो जिंदगी के अंदर जहां डिग्री इंपॉर्टेंट है, जहां नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम चीजें एक्सपीरियंस से सीखते हैं उसको कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकती है। तो यदि आपको कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कोई राय दे रहा है, उसको आप बेझिझक होकर लागू कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। और जो लोग उस पर शक करने लगते हैं, उस पर क्वेश्चन करने लगते हैं, तो राय देने वाले को कोई नुकसान नहीं होता, राय ना मानने वाले को ही नुकसान होता है। और ये आप जिंदगी में जगह जगह आजमा के देख लीजिए, अपने माँ बाप से भी पूछ के देख लीजिए। उन्होंने जिंदगी जी ली है तो वो भी बताएंगे कि हमने किसी अनुभवी आदमी का कहना माना था तो क्या फायदा हुआ था, और नहीं माना था तो क्या नुकसान हुआ था। क्योंकि अब तो वो जिंदगी जी चुके हैं ना, वो आपको बता सकते हैं। होता क्या है कि जब हम यंग होते हैं तो कई बार हमें अच्छा लगता है किसी का मजाक उड़ाना, कई बार हमें अच्छा लगता है किसी पे ना विश्वास करना। तो जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है तब हमें इन गलतियों का एहसास होता है। और जो लोग शुरू में कहना मान लेते हैं, एक अच्छी राय को पकड़ लेते हैं, वो सारे जीवन में सुखी रहते हैं। तो जिंदगी में सुखी रहना या ना रहना ये आपके ऊपर ही निर्भर है। हमारा काम तो है अच्छी बात बताते रहना, मानना ना मानना तो आपके ऊपर है। उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फायदा होगा आपको होगा, नहीं होगा तो आपको नहीं होगा, पर हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम है लोगों को सही राह दिखाना, राइट एडवाइस एट राइट टाइम। और उससे हजारों लोग ऑलरेडी नौकरी पा चुके हैं, और हजारों लोग नौकरी पाएंगे, इसे मुझे पूर्ण विश्वास है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का। 1 लाख लोगों को हेल्प करने का मेरा उद्देश्य है, वो जरूर भगवान मुझे मदद करेगा पूरी करने में। अब इंग्लिश में जब हमने अपनी गलतियां ढूंढ ली, हमें पता लग गया कि हम एक एरर स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, या इस पर्टिकुलर टाइप की चीज को हम नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? बिल्कुल क्लियर निष्कर्ष ये है कि मेरी जो ग्रामर है वो कमजोर है। जिस व्यक्ति की ग्रामर स्ट्रांग होगी उसको इंग्लिश पेपर में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। पहली चीज है, बिल्कुल तजुर्बे की बात आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भाषा के बारे में चेक कर रहा है एग्जाम के अंदर। और किसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी? जिसको ग्रामर वीक होगी। तो हमने क्या करना है, सीधा ग्रामर बुक पढ़नी है। रैन एंड मार्टिन मैंने आपको एक किताब प्रिस्क्राइब की है, अच्छी ग्रामर बुक है, कोई भी आप अच्छी ग्रामर बुक ले सकते हो। अब इसमें मान लो 450 पेज है, अब कोई देख के थक जाएगा कि इतनी बड़ी बुक है कैसे करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोज 1 से 2 घंटे हमने इंग्लिश में लगाने हैं। तो यदि हम इस टास्क को बांट लें कि भाई रोज 15, 20, 30 पेज कवर करने हैं, 10-15 दिन में किताब खत्म। ऐसे भी हमारे कैंडिडेट है 1 हफ्ते में उन्होंने किताब पढ़ डाली। और जितनी बार आप इस किताब को पढ़ेंगे उतनी बार आपकी ग्रामर में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। कोई रटना नहीं है इसको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने से क्या होता है कि जो चीजें हमें नहीं याद आ रही होती या नहीं पता होती वो पता लग जाती हैं। और जैसे जैसे वो पता लगती जाती है तो जो हमारे मिसिंग लिंक है लाइफ के अंदर, कई बार क्या होता है हमें आधी अधूरी नॉलेज होती है, उसी के बेसिस पे हम एग्जाम चले जाते हैं।
तो जो हमारे जो मिसिंग लिंक है यदि हमें मिल जाते, जैसे मान लो एक हमें किसी चीज़ को पूरा करना है, अगर उसके पूरे टुकड़े मिल जाएंगे तो चीज़ पूरी हो जाएगी, अगर उसमें एक आध टुकड़ा भी मिसिंग होगा तो नहीं पूरी होगी। ऐसे ही किसी भी एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज तो होती है मगर उसमें मिसिंग लिंक होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई होती हैं हमारे जीवन के अंदर। यदि हम उनको ढूंढ लेते हैं और उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं। तो जितना हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे उतना हमारा एग्जाम क्लियर होने का चांस बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं, मेरा कंपटीटर भी तैयारी कर रहा है। ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है मेरे इतने नंबर आ गए और मैं पास हो गया, नहीं, मुझे औरों से अधिक नंबर लेने हैं। अब ये कब होगा कि दूसरा व्यक्ति तैयारी कर रहा है, मैं भी तैयारी करूं और मैं इतनी तैयारी करूं कि उससे बेहतर तैयारी करूं, मैं जीत जाऊंगा। तो आपने क्या करना है, ग्रामर बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, जो मेरा मेथड है, मेथड कॉपी ए कॉपी बी, मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है, उसको इंग्लिश वाले वीडियोस आप देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, उसको अच्छी तरह कर लीजिए। तीसरा, मैंने वोकैबुलरी इंप्रूव करने का तरीका भी आपको इन वीडियोस में बताया। तो जो मैंने आपको न्यूज़पेपर बताया उसमें से आप 5 न्यू वर्ड पिक कर लीजिए जो आज तक आपने सुने नहीं थे, उनको डायरी में लिख लीजिए, उनका मीनिंग आप डिक्शनरी से लिख लीजिए, फिर 5 और शब्द चुन लीजिए, फिर कर लीजिए। अधिकतर एग्जाम्स में वो वोकैबुलरी वर्ड आते हैं जो रिसेंटली मीडिया ने इंट्रोड्यूस किए होते हैं। तो यदि हम अखबार से ये वोकैबुलरी के शब्द उठाते हैं और उनकी तैयारी करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उन वर्ड्स के आने की, क्योंकि कोई लिमिट तो होती नहीं है कहाँ से आ जाए वोकैबुलरी। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि हम अखबारों से इन शब्दों को उठाएं, उनके अर्थ जानें और उनको याद करें। तो अभी हमने क्या कर लिया, मॉक टेस्ट को हमने एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे यूज़ करना है ये सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा कि क्वांटिटेटिव के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, और उसके बाद आज की वीडियो में हमने सीखा कि इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में, और फिर उसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो इस तरीके से ये जो हमारे 5 वीडियो का सेट होगा, इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी सही रास्ते में तैयारी करने की। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दोनों जगह दे दिया। सो ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।